So, am I audible? सुनाई दे रहा है तो मैं शुरू कर देती हूँ. यस मैम. ओके ओके, सो हम लोग शुरू कर लेते हैं. हम लोग आज जेनेसिस शुरू करने वाले हैं. सो वील जस्ट प्रे एंड बिगिन. दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट, सो लेट अस प्रे एंड बिगिन. और टाइम भी कम है हमारे पास, सो खुदा मदद करे कि हम 1 महीने के अंदर इसको अच्छे से जैसे हो सकता है उस तरीके से पढ़ लें और टाइम भी दे पाएं इसके लिए. Okay, so let's close our eyes and let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you for everything that you are doing in our lives, Lord Jesus, and we thank you for this class, especially for all 2.5 years that they have gone through, Lord, as they are in their final round, Lord Jesus, and as they are just closing towards the end of their third year, Lord, I just commit them into your hands, Lord Jesus, and as they strive towards you, Lord, as they strive towards studying, Master Lord, and achieving all the things that you have planned and purposed for them in this college, Lord Jesus, I just pray that you be with them, Master Lord. And as we begin this subject today, the subject of Genesis, Lord, I just pray that you open all our minds and thoughts, Lord Jesus, and our heart, Lord Jesus, so that when we study, let it just penetrate into our hearts, Lord Jesus, into our minds, so that we may be able to understand it properly, Lord. And I also pray, Lord, we understand that the time is less. You know it, the time is less, Lord Jesus. And we just pray, Lord, that you help us, enable us, so that we may be able to uh, do justice with the course, Lord Jesus, and we'll be able to finish the course on time, Lord Jesus. Committing everyone into your hands, give us your wisdom and knowledge, Lord. Lead us and guide us, Master Lord. Committing everything into your hands. In your precious name we pray. Amen. Okay. Okay, so हम लोग शुरू करते हैं. Let's begin. So Genesis छूटने वाला था. Thank God मैं नहीं छूटा. Otherwise I don't know कैसे उसको हम लोग वापस लेकर के आते हैं. अभी हो सकता है आप लोग को मार्च के बाद पे बैठना पड़ता है इसके लिए. But anyhow, okay, so we'll begin with the course of Genesis. And शुरू में हम लोग introductory चीजें करेंगे इससे पहले कि हम लोग जो historical portions है उसके अंदर घुसे. So first we'll just do some introductory things, and we'll just talk about the beginning of human race. Okay, so beginning of human race ये हमारा पहला यूनिट है. एंड उसमें जो पहला चैप्टर हमारा है वो है जेनेसिस, साइंस एंड क्रिएशन. Okay, so we all know that science and Bible have, and it appears to us that science and Bible have always been in conflict. हमेशा हमें लगता है कि बाइबल और साइंस के बीच में हमेशा एक लड़ाई चलती है, एक युद्ध लगा रहता है और कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है. बट many of the biblical scholars and many people who are wise enough to understand Bible and science both, and especially Christian जो scientists है, Christian जो science में है, and when they understand the Bible, and जब हम बाइबल का स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है that the more the science deals with things in a proper way, एक साउंड माइंड से अगर वो डील करता है साइंस के साथ में, एंड जो ऑब्जर्वेशंस को अगर लेता रहता है, प्रॉपरली समझने की कोशिश करता है, सो एक्चुअली इट विल नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बाइबल, बट इट विल एक्चुअली स्टैंड इन लाइन विद द बाइबल, क्योंकि बाइबल में कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें नहीं पाई जाती हैं. एंड हम लोग कुछ चीजों का भी देखने वाले हैं. वील जस्ट ट्राई टू बेसिकली अंडरस्टैंड साइंस एंड बाइबल. हम लोग उन चीजों को थोड़ा देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है, एंड how we can deal with that. Okay, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं. So basically we are going to start with a couple of things or questions जो हमारे दिमाग में आ सकते हैं जेनेसिस को लेकर के, इसको हम लोग पूरा करते हुए चलेंगे. So what does the word Genesis mean? वो बहुत important हो जाता है as biblical students. जब हम बुक शुरू करते हैं तो इसके नाम का अर्थ जानना. Then how does this book relate to the rest of the Bible? So we know that the Bible, or each and every book of the Bible, should be in connection with the rest of the Bible. Okay, so Bible की यही beauty है, unity and diversity हम बोलते हैं कि अलग अलग books हैं, अलग अलग authors हैं, but everything falls in line with each other. Okay, and who wrote it? फिर किसने लिखा है इसको, उसके authorship के बारे में काफी कुछ हम लोग देख सकते हैं. And then what is the purpose of writing it? Okay, so वो चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे. And then we will look into the relationship between Genesis and science, because बहुत interesting topic भी है, and बहुत ज़्यादा delve नहीं करेंगे अंदर, but हम लोग काफी touch करते हुए चलेंगे उसको. Then evolution,
जो हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली क्रिएशन एंड एवोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके बीच में। सो वी विल बी टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट दैट आल्सो। ओके, सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम जेनेसिस की किताब देखने वाले हैं, उसके टाइटल और उसका थोड़ा डिटेल्स बैकग्राउंड के बारे में, उसका टाइटल, प्लेस, okay, place in the Bible, then authorship and time of writing, purpose, theme and structure, and then we'll talk about the creation and science. Okay, जहाँ पर एवोल्यूशन आ जाता है, क्रिएशन आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसमें हम लोग कुछ एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने वाले हैं, कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको देखेंगे, एंड देन विल गो इनटू द डेज ऑफ क्रिएशन, क्योंकि वो भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, एंड उसके बारे में भी बहुत सारी थियोरीज हैं। क्रिएशन के बारे में भी बहुत सारी थियोरीज है, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ओके, so let's begin and we'll dive into the book of Genesis now. Okay, so the knowledge of the book of Genesis actually greatly affects our whole understanding. There was always a purpose why Genesis is kept right in the beginning of the whole Bible. यानी एक डेफिनेटली एक पर्पस था जिसकी वजह से उत्पत्ति की जो किताब है वो शुरुआत में रखी गई है, राइट इन द बिगिनिंग उसको रखा गया है। हम लोग देख लेते हैं, सो वील गेट इट फ्रॉम द टॉपिक इटसेल्फ, फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ। ओके, सो हम लोग सबसे पहले टाइटल को देख लेते हैं, टाइटल एंड द प्लेस ऑफ जेनेसिस इन द बाइबल, उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो ओके, सो हम लोग देख लेते हैं जेनेसिस का क्या मतलब है। जेनेसिस इट वाज ओरिजिनली रिटन इन द हिब्रू लैंग्वेज, जो हम लोग सब लोग जानते हैं, पुराना नियम हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया था, एंड इट्स नेम इज बेरेशित। ओके, ये भी थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा बिकॉज ये हम लोग पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। सो बेरेशित, बेरेशित का मतलब है इन द बिगिनिंग, कि बेरेशित का मतलब होता है इन द बिगिनिंग। सो द नेम ऑफ जेनेसिस इन द बाइबल इन द हिब्रू लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज वाज बेरेशित, and its meaning was in the beginning. Okay, then we can see that the title जो है वो कैसे रखा गया था, हम लोग देख सकते हैं। So जो टाइटल है वो और कोई तरीका नहीं, जैसे ऐसा नहीं था कि किताब में से कोई मेन टाइटल निकाल दिया गया हो, या जो कुछ चीजें सॉरी उसमें टाइटल रखा गया हो और बहुत सारी चीजें जो है उसको देख करके ये टाइटल रखा गया था। सो हम लोग देख सकते हैं उसमें नाम कैसे रखते हैं हिब्रू बुक्स में, जो आपका जो इनिशियल या बिगिनिंग वर्ड्स होते हैं, आके जो जो अपने ऑथर लिखता है उसके जो बिगिनिंग वर्ड्स होते हैं उसको उठा करके टाइटल बना दिया जाता है। ओके, सो वी कैन सी दैट द नेम बेरेशित came from the initial words or the beginning words of the book of Genesis. So Genesis जो नाम है वो Septuagint से आता है। Okay, so Genesis is a Greek word and it comes, और वो जो नाम है वो Septuagint से आता है, but original name जो था वो था Bereshit. Okay, Bereshit, that is in the beginning, and Genesis came into being when Septuagint was created. Septuagint क्या था? I don't know if you remember or not. Just to brush through, Septuagint था when the Hebrew Bible was translated, or Hebrew Old Testament was translated into the New Test into Greek language. Okay, by 70 people. Okay, 70 people in almost 70 hours, 70 days, sorry. So उसमें जब translation किया गया था तो उसका जो नाम था वो जेनेसिस रख दिया गया था इन ग्रीक लैंग्वेज। ओके, अब जेनेसिस का क्या मतलब है? ओके, मैंने अभी बेरेशित का मतलब बताया था, बेरेशित का मतलब है इन द बिगिनिंग। ओके, जेनेसिस का मतलब क्या है? जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन, सोर्स और जनरेशन। ओके, सो दोनों के मतलब सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के नाम में। ओके, सो बेरेशित का मतलब है, जो हिब्रू लैंग्वेज में है इस किताब का नाम, उसका मतलब है इन द बिगिनिंग, एंड जो ग्रीक लैंग्वेज में है उसका मतलब है ओरिजिन, सोर्स और जनरेशन। ओके, so the book, basically the book of Genesis is the book of beginnings. We can see a lot of beginnings, a lot of stories about the beginnings in the book of Genesis. So it is the book of origin of the earth and all that is in the earth and the human relationships. Okay, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, जेनेसिस की किताब में पाया जाता है। ओके, सो वी कैन सी दैट द ओल्ड टेस्टामेंट हैज मेजरली 4 डिविजन्स, जो आपको भी पता है, एंड जेनेसिस हैपेंस टू बी द लॉन्गेस्ट of all the books in the first section, that is the Pentateuch or the Torah. Okay, तो सबसे बड़ी किताब है पेंटाटुक या तोरा की। ओके, जो लॉ वालों किताब है, लॉ वाली किताब है, उसमें सबसे बड़ी किताब हमारी जेनेसिस की किताब है। So the first 5 books are called Torah in the Hebrew, which means the law, and they are called Pentateuch in the Greek, which means 5 books or 5 scrolls. Okay, तो छोटे छोटे ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो याद रखने वाली हैं। सो फर्स्ट 5 बुक्स हैं तोरा, या फिर तोरा हिब्रू भाषा में हो जाता है, पेंटाटुक ग्रीक लैंग्वेज में हो जाता है। तोरा का मतलब है लॉ, एंड
पेंटाटुक का मतलब है 5 बुक्स और 5 स्क्रोल्स। ओके, सो आगे बढ़े हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन देख रहे हैं। सो वी कैन सी दैट द बुक्स ऑफ लॉ, पहला हमारा क्लासिफिकेशन इसमें जेनेसिस से ड्यूटोनॉमी तक आता है। देन वी हैव द सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज हिस्टोरिकल बुक्स, उसमें 15 बुक्स हैं व्हिच इज फ्रॉम जोशुआ टू एस्थर। देन वी हैव द थर्ड section that is a poetical book which has again 5 books from Job to Song of Songs. And then we have the last division that is a prophetical books which has 17 books and it is from Isaiah to Malachi. Okay, so हम लोग देख सकते हैं, ऑल्दो हमारा जो बाइबल है, ओके, इट इज हमारा बाइबल काफी हिस्टोरिकल है नेचर में, बट हम लोग देख सकते हैं इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लॉ। ओके, स्पेशली हम लोग देखते हैं अगर जेनेसिस की किताब को हम लोग देख लेते हैं तो वो काफी हद तक के हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल है नेचर में, बिकॉज उसमें पेट्रियार्क्स की स्टोरी भरी पड़ी है, बट स्टिल हम लोग देख सकते हैं इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लॉ। लॉ में वो काउंट होता है, एंड पहली किताब है वो लॉज के सेक्शन की। ओके, सो जेनेसिस फॉर्म्स द इंट्रोडक्शन as well as the foundation for the moral and the legal codes of the law and also the history and the doctrines in the rest of the Bible। तो हम देख सकते हैं जेनेसिस की जो किताब है वो इंट्रोडक्टरी किताब है, किस चीज की? ओके, वो फाउंडेशन बना देता है, पूरे के पूरे बाइबल का फाउंडेशन बना देता है, एंड हमें लॉ की ओर लेकर के चलता है और हमें मॉरल और लीगल कोड्स के बारे में बताता है। ओके, एंड हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन्स के बारे में बताता है। वो सब शुरुआत अगर होती है तो वो हम देखते हैं जेनेसिस के अंदर ही होती है। उसके बाद ही हम देखते हैं आगे चल के एक्सोडस में मोसेस लेकर के जाता है एंड देन उनको लॉ मिलता है, बट काफी कुछ हम देखते हैं अनरिटन कोड्स, अनरिटन लॉज, अनरिटन डॉक्ट्रिन्स आर बिगिनिंग इन जेनेसिस इटसेल्फ। एक्सोडस में क्या होता है कि लॉ लिखना शुरू हो जाता है, यानी वो वर्बली गॉड बोलना शुरू कर देता है, लोगों को एकदम अच्छी तरीके स्ट्रक्चर करना शुरू कर देता है, बट इनिशिएशन जो होता है वो जेनेसिस में ही हो जाता है। सारे लॉज का, लीगल कोड्स का, हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ डॉक्ट्रिन्स का, सब कुछ हम देखते हैं शुरुआत जो होती है वो जेनेसिस में ही हो जाती है। ओके, देन जेनेसिस अपीयर्स टू बी मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द न्यू टेस्टमेंट rather than the other of the old testament। ये बहुत यूनिक चीज है जेनेसिस की कि वो बाकी के जो ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें हैं उससे उतना क्लोज निट नजर नहीं आती, बट न्यू टेस्टामेंट से बहुत क्लोजली कनेक्टेड पाई जाती है। रीजन बीइंग हम देखते हैं फॉल जो हुआ था, फॉल जो हुआ था वो जेनेसिस में हुआ था। ओके, हम लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर में फॉल होता है, एंड हम लोग देखते हैं उसके बाद फ्लड भी आता है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी चीजें होती है राइचियसनेस करने के लिए, उनका इम्प्यूटेशन होता है, और हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं जेनेसिस में। ओके, सो बेसिकली हम देखते हैं फॉल, जो फॉल है एंड जजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में पाया जाता है, जेनेसिस की किताब में वहां से शुरू होता है, एंड उसका जो कल्मिनेशन होता है वो न्यू टेस्टामेंट में होता है। ओके, व्हेन जीसस कम्स एंड व्हेन ही डाइज ऑन द क्रॉस, और हम लोग देखते हैं वो जजमेंट जो आने वाला होता है, रेवलेशन जो होता है हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली जो जेनेसिस की किताब है it connects more easily with the New Testament than with the other books of the Old Testament। Okay, so हम लोग देखते हैं अगर न्यू टेस्टमेंट, इसीलिए बोलते हैं अगर न्यू टेस्टमेंट को समझना है तो आपको पुराना नियम पढ़ना पड़ता है। अगर आपको उद्धार के बारे में जानना है जो जीसस क्राइस्ट से हमें मिलता है, सो आपको पहले पाप के बारे में जानना है कि पाप हुआ था उसके बाद क्या हुआ। ओके, सो दैट इज व्हाई वी से दैट sin happens in the book of Genesis, and then if we jump through the rest of the Old Testament, then we will see that New Testament में जो Gospels है वहां पर हम देखते हैं उसका जो कंक्लूजन होता है या उसका उद्धार का जो कार्य होता है वो वहां पे पाया जाता है। So they both are connected very easily। Okay, then we see that some of the first figures reappear इन द लास्ट बुक, यानी जेनेसिस में जो लोग थे वो हम लोग देखते हैं वो आखिरी किताब में यानी रेवलेशन में वो सारी चीजें निकल करके आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने वाले जो जेनेसिस में पाए जाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली अगर हम जंप करते हैं तो उसके बाद वो रेवलेशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि बेबल और बेबीलोन हो गया। ओके, बेबीलोन के बारे में लिखा गया है। देन एंशिएंट सर्पेंट, सर्पेंट के बारे में हम देखते हैं जो डिसीवर था, जिसने छलावा करके पाप करवाया था ईव से एंड एडम से, हम देखते हैं वो एक बार फिर से हमें नजर आता है सर्पेंट के रूप में रेवलेशन की किताब में। फिर हम देखते हैं ईडन गार्डन को हम देखते हैं। ओके, गार्डन ईडन को हम ईडन गार्डन को हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिडीम्ड को देखते हैं, जो रिडीम्ड रेस्टोर किए जाएंगे पैराडाइस में। फिर ट्री ऑफ लाइफ हमें अदन की वाटिका में नजर आई थी, उसके बाद एक बार फिर से नजर आती है, वो नजर आती है हमें रेवलेशन की किताब में।
Okay, so we can understand that some things that were mentioned in the book of Genesis are also again mentioned in the book of Revelation. So शुरुआत में और अंत में वो सारी चीजें फिर से एक बार मेंशन होती हैं, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट तरीके से, एज अ कंक्लूडिंग वे वो सारी नजर आती हैं. ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इंट्रोडक्टरी वे में जेनेसिस के. ओके, अभी हम लोग जो देख लेते हैं उसका नाम के बारे में हम लोग ने देखा, एंड उसके पोजीशन के बारे में देखा, द पेंटाटुक एंड द बाइबल. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके ऑथर और उसका टाइम ऑफ राइटिंग के बारे में देख लेते हैं. ऑथरशिप बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बुक ऑफ जेनेसिस एंड फॉर पेंटाटुक, बिकॉज हमें से कई लोगों को लगता है कि मोसेस ने लिखा है और कई स्कॉलर्स कहते हैं कि मोसेस ने पूरा नहीं लिखा है. ओके, सो हु रोट जेनेसिस एक्चुअली, वो क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि जेनेसिस किसने लिखा है. सो ट्रेडिशनली अगर हम बोलेंगे, ओके, इट्स ऑलवेज सेड ट्रेडिशनली. ओके, सो बाइबल क्लियरली क्रेडिट्स पेंटाटुक टू मोसेस. ओके, पेंटाटुक जो लिखा है, बाइबल अधिकतर पेंटाटुक या लॉ के बारे में जब बात करती है, बुक्स ऑफ लॉ के बारे में बात करती है, सो वो कहती है कि मोसेस ने लिखा है. ओके, ऑल्दो देयर इज नो डायरेक्ट स्टेटमेंट is given in regard to writing जेनेसिस. ओके, सो हमें समझना है कि हाँ पेंटाटुक लिखा है. ओके, मोसेस के बारे में अगर हम देखते हैं, बाइबल भर में बहुत सारे पद पाए गए हैं जहां पर लिखा गया है कि लॉज, द बुक ऑफ लॉ, और तोरा द बुक ऑफ लॉ, ये लॉ वो लॉ करके लिखा गया, और वो बोलते हैं कि मोसेस ने लिखा है द बुक ऑफ लॉ. ओके, अब बुक ऑफ लॉ बोलने से पहली 5 किताबें होती हैं. We have to understand that. Okay, so whenever any prophet or whenever any New Testament person, apostle हो गया, जीसस क्राइस्ट हो गया, जो भी हैं, so वो सब लोगों ने जब भी लॉ के बारे में बात की है, या ऑथर के बारे में, ऑथर ऑफ द लॉ के बारे में बात की है, या लॉज मोसेस ने दिया, मोसेस लेकर के आया, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 5 बुक्स. Okay, so they are not talking about one book in particular, they are talking about the first 5 books, that is the Torah section or the section of Pentateuch. ओके, सो हम देखते हैं बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं जो बताते हैं कि पेंटाटुक मोसेस ने लिखा है. सो ट्रेडिशनली बाइबल अस्क्राइब करती है मोसेस को, क्रेडिट करती है मोसेस को कि उसने पेंटाटुक लिखा है. ओके, ट्रेडिशनली, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनली ये माना जाता है. बट कहीं पर भी ये डायरेक्टली नहीं लिखा है कि उत्पत्ति की किताब या फिर बेरिशित या फिर जेनेसिस मोसेस ने लिखा है. ओके, तो उस तरीके से नहीं पाया जाता. बट क्योंकि जेनेसिस कम्स इन द होल ऑफ पेंटाटुक, वो पैकेज है, सो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि, या ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि मोसेस इज द ऑथर ऑफ जेनेसिस आल्सो, बिकॉज उसको ही क्रेडिट किया जाता है पूरा का पूरा पेंटाटुक. ओके, सो नाउ वी विल सी एट सम ऑफ द एविडेंसेस. हम लोग कुछ एविडेंसेस को यहाँ देखने वाले हैं. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द एविडेंसेस यहाँ पे. ओके, कुछ एविडेंसेस यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर मौजूद है, एक चार्ट मौजूद है. यहाँ पर हम लोग 4 प्रकार के एविडेंसेस को देखने वाले हैं. ओके, सो मोसेस के ऑथरशिप के ऊपर या मोजाइक ऑथरशिप के ऊपर देयर आर 4 एविडेंसेस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. That is biblical references. Okay, biblical references. Second is Moses' qualification. Okay, Moses' qualification. Then we are going to look at narratives and then archaeology. ओके, तो ये 4 चीजें हम देखने वाले हैं, जिसके बारे जो हमें बताते हैं, जो एविडेंस के रूप में हमारे सामने आते हैं कि मोसेस ने ही जेनेसिस की किताब को लिखा है. ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं इसी को. सो फर्स्ट पॉइंट जो इसका है, बिब्लिकल रेफरेंसेस. ओके, बिब्लिकल रेफरेंसेस जो हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल एविडेंसेस. बिब्लिकल रेफरेंसेस को हम बोलते हैं इंटरनल एविडेंसेस. ओके, इंटरनल एविडेंसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बाइबल के बारे में ही बात कर रहे हैं, जेनेसिस के और पेंटाटुक के बारे में ही बात कर रहे हैं, और कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं बाइबल के अंदर. Okay, so we are getting proofs or evidences within the Bible. That is why it is called biblical references or internal evidences. अंदर से, okay, अंदर से जो evidences हमें मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, एंड इसको बोला जाता है internal evidences या फिर बिब्लिकल रेफरेंसेस. ओके, जैसे इंटरनल एविडेंसेस होते हैं वैसे ही एक्सटर्नल एविडेंसेस भी होते हैं. ओके, जिसके बारे में हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं. ओके, फर्स्ट लेट अस लुक एट द इंटरनल एविडेंसेस और बिब्लिकल रेफरेंसेस. ओके, सो जो हमें इंटरनल एविडेंसेस बेसिकली मिलते हैं वो 3 जगहों से मिलते हैं. ओके, वी गेट इट फ्रॉम 3 प्लेसेस: पेंटाटुक, ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट.
ओके, सो हम लोग देख सकते हैं देयर आर रेफरेंसेस टू मोसेस ऑथरशिप टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ पेंटाटुक, ओके, बट दे डू नॉट स्टेट दैट मोसेस रोट ऑल ऑफ इट। आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बिकॉज़ हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं एक्सोडस हो जाता है, उसके बाद लेविटिकस होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्यूट्रोनोमी में होते-होते अगर हम लोग देख सकते हैं मोसेस के डेथ हो जाता है। ओके, सो नंबर्स अब किसने लिखा? हमें कुछ क्वेश्चंस निकल के ऐसे सामने आ जाते हैं, मोसेस का डेथ होने के बाद कौन लिख रहा है? हू इज़ राइटिंग? ओके, एंड देन वी हैव जोशुआ कमिंग इन। सो पॉसिबिलिटी है, कई स्कॉलर्स को मानते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रोबेबली उसके बाद जोशुआ ने इसको कंटिन्यू किया था, बट देयर इज नो एविडेंसेस। ओके, कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास में। ओके, दीज आर ऑल assumptions जो बोले जाते हैं, बिकॉज इट इज नेवर ascribed टू देम, बट द क्वेश्चन अराइजेस बिकॉज मोसेस डाइज एंड उसके बाद कौन लिख रहा है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड that there is possibility that the people of Moses or the close connected people of Moses also wrote after him। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने, वो कहानी खत्म करने के लिए उन्होंने भी लिखा है या थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, सो ट्रेडिशनली डेफिनेटली वी हैव टू ऑलवेज, हम लोग बोलते हैं कि मोसेस ने ही लिखा है, बट अगेन मैं ये स्टेटमेंट रीड करना चाहती हूँ, देयर आर रेफरेंसेस टू मोसेस ऑथरशिप to certain parts of Pentateuch, okay, to certain parts of Pentateuch, but they do not state that Moses wrote all of it। ठीक है, पूरा का पूरा मोसेस ने लिखा है करके नहीं बोला जाता है, कभी भी नहीं कहा गया कि पूरा का पूरा मोसेस लिखा है। ओके, बट जनरली हम जब चर्च के सामने बोलते हैं, जनरली हम जब लोगों के सामने, ले पीपल के सामने इस आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मोसेस ने लिखा है। ओके, बट क्योंकि आप बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी जेनेसिस किताब पढ़ने वाले हैं एंड ये सब पढ़ रहे हैं, तो वी कैन टॉक टू यू एंड वी कैन टेल यू दैट probably Moses was not the author of the whole of the Pentateuch, but there are parts to it which Moses definitely has written, and there are parts which he might not have written। Okay, so the possibility is of other authors। Okay, but हम लोग देखते हैं बाइबल कभी भी उस बारे में बात नहीं करती है कि तोरा सेक्शन किसी और ने लिखा है। Okay, so we do away with that idea in verbally। Okay, we don't bring other people inside because it is never written about them कि इसने लिखा है, उसने लिखा है, apart from Moses। Okay, so we can see in Pentateuch itself claims that Moses wrote certain parts। ओके, तो कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस हमें पाए जाते मिलते हैं, जो बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, इंटरनल एविडेंसेस हैं, जो पाए जाते हैं एक्सोडस 17 के 14 में, 24:4 में, 34:28 में, नंबर्स 33:2 में, ड्यूट्रोनॉमी, इन सब पदों में अगर आप खोल के देखते हैं, इट विल बी गुड इफ आप लोग आज शाम को ये अगर आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जस्ट गो थ्रू दीज रेफरेंसेस। ओके, so when you go through these references you will realize that yes, there are direct claims that Pentateuch claims that Moses wrote certain parts of it। ओके, सो पेंटाटुक अपने में क्लेम करती है, या पेंटाटुक सेक्शन में कुछ रेफरेंसेस ऐसे पाए जाते हैं जो क्रेडिट करते हैं कि मोसेस ने लिखा है। ओके, सर्टेन पार्ट्स एटलीस्ट मोसेस ने लिखा है। then we have Old Testament evidences। okay, so Old Testament writers attribute the Pentateuch to Moses। okay, so पुराने नियम के जो यहूदी लोग थे, पुराने नियम में जो इजरायली लोग हैं, इब्रानी लोग हैं, they credit it to Moses। so लॉ का बात अगर आता है, पेंटाटुक का अगर बात आता है, तोरा का बात आता है, so बोलते हैं वो सब के सब मोसेस के बैनर में डाल देते हैं। ओके, दे ऑल पुट इट इन द अम्ब्रेला ऑफ मोसेस। सो मोसेस का नाम ही लिया जाता है। ओके, सो भले ही किसी और ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, बट द मोस्ट बिगेस्ट नेम, जो सबसे बड़ा नाम है, वो मोसेस का है, मोस्ट अथॉरिटेटिव नाम मोसेस का है। सो दे ऑल क्रेडिट इट टू और एट्रीब्यूट इट टू मोसेस। ओके, सो जब कभी पुराने नियम के लेखकों ने भी बोला है कि लॉ, ओके, लॉ, तो बोलते हैं लॉ ऑफ मोसेस, हमेशा बोला जाता है लॉ ऑफ मोसेस। इसका मतलब मोसेस ने लिखा है, दे बिलीव्ड that Moses wrote it। So there are some references before you: Joshua 1:7-8, 23:6 and 2, Second King, sorry, 14 का 6, and then Ezra 3:2। ये सब आपके सामने कुछ references हैं, so you can note it down और screenshot ले सकते हैं, and then you can check it out, and then उसमें आपको पता चलेगा कि ये Old Testament के जो authors हैं, जो writers हैं, they are also crediting Pentateuch to Moses as law of Moses। okay, इस तरीके से उसको बताते हैं, law given by Moses, उस तरीके से उसको बोलते हैं। ओके, द थर्ड हम लोग देखते हैं जो एविडेंस है वो हमारा है न्यू टेस्टामेंट राइटर्स। ओके, सो जब हम न्यू टेस्टामेंट राइटर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, दे वर आल्सो कन्विंस्ड। हमें समझना है कि अब ये कौन लोग हैं। दे आर अगेन
the descendants of the Jews, the descendants of the people of the Old Testament. Okay, तो वो लोग इब्रानी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हुए आए हैं, एंड क्योंकि न्यू टेस्टमेंट की तरफ है उन लोग, सो दे आर रीडिंग द सेप्टुअजिंट. अभी उन लोग सेप्टुअजिंट पढ़ रहे हैं, बट दे हैव बीन टॉट इन द सेम वे. उनको उसी तरीके से पढ़ाया गया है, जिस भी स्कूल में वो पढ़े हों या अपने सिनेगॉग्स में पढ़े हों, जहाँ कहीं भी पढ़े हों उन लोग, हम लोग देखते हैं उनको यही चीज पढ़ाई गई है, दैट द लॉ हैज बीन गिवन बाय मोसेस. सो पेंटाटुक, मैं हमेशा पेंटाटुक की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जेनेसिस अकेले के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है. ओके, सो जब हम पेंटाटुक बोल रहे हैं उसमें जेनेसिस इंक्लूडेड है. ओके, सो हम लोग देख रहे हैं जब भी पेंटाटुक के बारे में बात आ रहा है, तो इवन द न्यू टेस्टमेंट ऑथर्स, New Testament writers refer to certain passages of Pentateuch as written by Moses. Even हम देखते हैं ऑथर से छोड़ दीजिए, राइटर्स भी छोड़ दीजिए, जीसस की बात करते हैं अगर, सो इवन जीसस सेड दैट द लॉ ऑफ मोसेस, जीसस भी जब अस्क्राइब करता था, जब बात करता था लॉ के बारे में, सो जीसस आल्सो यूज्ड टू टॉक और टेक द नेम ऑफ मोसेस एज द ऑथर ऑफ द सेक्शन ऑफ द लॉज. ओके, और पेंटाटुक या फिर तोरा, जो उसका ऑथर है वो मोसेस है करके जीसस भी उसको बोला, बिकॉज दैट वाज द नॉर्मल रेडिली एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम. ओके, सो हम लोग देख सकते हैं द फॉलोइंग पैसेजेस जो हैं, हम लोग देखते हैं उसको बहुत डायरेक्ट वे में देखा जाता है, कि ऐसा लगता है कि पेंटाटुक की बात नहीं कर रहे हैं, बट लगता है कि मोसेस को पढ़ा जा रहा है. ओके, एज इफ इट्स नॉट पेंटाटुक और द लॉ, बट इट इज मोसेस दैट इज बीइंग रेड. ओके, सो हम लोग देखते हैं वो 2 Corinthians 3:15 एंड एक्ट्स 15:21 में देख सकते हैं उस चीज को. इट्स वेरी डायरेक्ट, दीज वर्सेस आर वेरी डायरेक्ट, जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं. ओके, देन जीसस के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो जीसस ने भी एक चीज बोली थी, इफ यू बिलीव्ड इन मोसेस you would believe in me, for he wrote about me. Okay, so हम देखते हैं जब लॉज में और कुछ स्थानों में जब जीसस इस चीज को बोलता है कि यहूदियों में से ही एक निकल करके आएगा, और जीसस बात करता है, प्रॉफिट के बारे में एक बात करता है, जिसको इस्लाम वाले लोग बोलते हैं कि वो मोहम्मद के बारे में बात कर रहा है, बट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जीसस के बारे में बात हो रहा है. सो दैट्स अ वेरी कॉन्ट्रोडिक्टिंग पैसेज, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो वो पैसेजेस पाए जाते हैं, और जीसस उसको उनको बोलता है जॉन 5:46 में, दैट ये लॉज जो थे वो मोसेस ने लिखा है, एंड मोसेस जीसस की तरफ इशारा करता है, और जीसस के बारे में ही बोल रहा है. सो जीसस इज सिंपली सेइंग दैट इफ यू बिलीव्ड इन मोसेस, यानी द लॉ दैट हैज बीन गिवन बाय मोसेस, देन यू वुड बिलीव इन मी. Okay, so Jesus also is actually saying that the laws were written by Moses, the laws were given by Moses. So in general, the Pentateuch or the Torah has been written or given by मोसेस. सो ये हमारे इंटरनल एविडेंसेस थे जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. सो इंटरनल एविडेंसेस या फिर बिब्लिकल रेफरेंसेस 3 पार्ट्स में हमें मिलते हैं, पेंटाटुक, ओल्ड टेस्टामेंट राइटर्स एंड न्यू टेस्टामेंट राइटर्स इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट. ओके, सो इन 3 जगहों से हमें इंटरनल एविडेंसेस मिलते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट चीज में चाहते हैं जो हमारा है नैरेटिव स्टाइल. ओके, नैरेटिव स्टाइल क्या होता है, यानी किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका या बयान करने का तरीका. ओके, सो ये जो किताब है हम देख सकते हैं, जो पेंटाटुक के जो सेक्शन है, ये बहुत एक्यूरेटली लिखा गया है, यानी कि इसमें बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस हैं, बहुत एक्यूरेट ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस हैं. ओके, बहुत एक्यूरेटली हर चीज डिस्क्राइब की गई है, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब की गई है, उनकी यात्रा के बारे में हो जाए, चाहे उन लोग जहाँ स्टे करे तो उसके बारे में हो जाए, चाहे खाने पीने के बारे में हो जाए, चाहे लोगों का बिहेवियर के बारे में हो जाए, तो हम लोग देख सकते हैं इट इज डिस्क्राइब्ड एंड रिटन वेरी वेरी एक्यूरेटली. ओके, सो हम लोग देख सकते हैं पेंटाटुक में जिसने भी, अगर हम बोलते हैं मोसेस नहीं है, तो whoever has written the Pentateuch or the section of Torah has described very vividly, very accurately all the physical features of the Sinai Peninsula. Sinai Peninsula कहाँ है? जहाँ पर सिनाई पर्वत पाया जाता है. ओके, तो हम देखते हैं वो पूरा एरिया जो था उसका बहुत विविड डिस्क्रिप्शन दिया है जिसने भी दिया है. ओके, उसके बाद हम देखते हैं जिस तरीके से पेंटाटक लिखा गया, अगर आप जेनेसिस की किताब देखते हैं, उसके बाद जेनेसिस की किताब को तो हम थोड़ा साइड करेंगे, हिस्टोरिकल में आ जाता है काफी हद तक. उसके बाद हम जब एक्सोडस में आते हैं, एक्सोडस भी नैरेटिव है. एक्सोडस तो इट्स लाइक वो मोसेस का ही टाइम चल रहा है, सो इट्स वेरी बहुत एग्जैक्ट है, और हम देख सकते हैं बहुत ही नैरेटिव वे में लिखा गया है, बहुत क्लियर डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया है.
सो जो हम लोग देखते हैं एक्सोडस की किताब हो जाती है, उसके बाद लेविटिकस की किताब जहाँ लॉज के बारे में पूरा दिया गया है, एंड ड्यूटोनॉमी जहाँ हर चीज रिपीट की गई है। तो हम लोग देख सकते हैं ये सारी किताबें जो पाई जाती हैं, इट इज बेसिकली जो एक्सोडस के ऊपर ही बेस्ड है पूरा का पूरा। वो पूरा जर्नी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो आंखों देखी गवाही दे रहा है। ओके, somebody who is talking as an eye witness। ओके, आई विटनेस की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें पता है। एंड ये जो बुक्स लिखे गए हैं, स्पेशली द बुक ऑफ एक्सोडस अगर हम देख सकते हैं, दैट ड्यूटोनॉमी और ये सब, तो खास तौर से वो किताबें जो हैं, इट्स रिटन इन एन आई विटनेस स्टाइल, यानी ऐसा कि जो आंखों देखा गवाही दे रहा है। Okay, so that is why many of the people talk about Moses being the author, because he is the one who was in Egypt before। हम देख सकते हैं निकलने से पहले वो इजिप्ट में रह रहा था, उसके बाद वो वहाँ पे महल में रहा, उसके बाद हम जानते हैं थोड़ी लड़ाई हुआ, हिब्रू हिब्रू से लड़ाई हुई उसकी, हम देख रहे थे। फिर उसके बाद भाग जाता है, और फिर उसकी यात्रा के बारे में, यानी वो मीडियन में क्या कर रहा था। तो एवरीथिंग इज देयर, एंड एवरीथिंग इज अबाउट मोसेस। सो प्रोबेबली मोसेस इज ओनली राइटिंग अबाउट हिज लाइफ स्टोरी, एंड वो पूरे यात्रा के बारे में प्रोबेबली वही लिख रहा है। ओके, आर्कियोलॉजी में अगर हम बढ़ के देखते हैं, आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी वो चीजें होती हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि डिग करके या डिस्कवरीज करते हैं, यानी अलग अलग जगहों को खोदाई करी जाती है, एक्सकवेशंस किए जाते हैं, और उन सिटीज में से रूइंस ढूंढे जाते हैं, डिस्कवर किया जाता है, कुछ चीजें, कुछ नाम, कुछ अलग अलग बातें डिस्कवर की जाती हैं। एंड उसी को लेकर के हम लोग देखते हैं, उन लोग प्रूफ्स पैदा करते हैं, एविडेंसेस देते हैं। सो आर्कियोलॉजिकली अगर हम लोग देखने जाते हैं, वो भी हमें समझ में आता है कि उस समय की ही बातें हैं। इट इज अबाउट दोस टाइम्स ओनली। सो मेनी डिस्कवरीज हम देखते हैं, मेनी डिस्कवरीज शो दैट सम कस्टम्स described in Genesis reflected the Hurrian and Babylonian practices in the second millennium BC। ओके, तो सेकेंड मिलेनियम बहुत पहले की बात है, सेकेंड मिलेनियम बीसी की बात कर रहे हैं, मिलेनियल मतलब मिलियन ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं हम लोग, मिलेनियम की बात कर रहे हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ की, जहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, डिस्कवरीज हुए हैं कस्टम्स के बारे में, यानी उन्होंने जब खोदा बहुत सारी चीजें, तो उनको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, प्रूफ्स मिले हैं, जहाँ पर ऐसे पता चलता है कि जो चीजें जेनेसिस में कस्टम्स के रूप में सामने आती थी, यानी जो कल्चर सामने आ रहा है, जो कस्टम्स सामने आ रही हैं, कस्टमरी चीजें सामने आती हैं, वो सब चीजें उस समय हुरियन एंड बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस में भी पाई जा रही थी। सो देयर इज अ सिमिलैरिटी, there is a similarity that is seen in the description of Genesis and the excavations that have been done, and जो proofs मिले हैं Hurrian and Babylonian practices के बारे में, उसमें similarities या समानताएं पाई जा रही हैं। Okay, then we can see the typical names। Okay, उधर जो नेम्स होते थे, हर जगह के हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, अलग अलग तरीके से नाम रखे जाते हैं। ओके, चाहे वो पोजीशन के नाम हो, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो। ओके, सो वो सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो हमारे कल्चर को दिखाते हैं, एंड इट टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ए पर्टिकुलर एरिया, उसके बारे में वो बताता है। सो हम लोग देखते हैं देयर आर टिपिकल इजिप्शियन नेम्स एंड टेक्निकल टर्म्स, ओके, जो एक्सकेवेट करने पे मिला है, एक्सकेवेट करने पे उसकी प्रूफ्स मिले हैं, एंड वो दिखाते हैं कि जो पेंटाटुक का जो राइटर था, प्रोबेबली वो इजिप्ट में रहा है। ओके, क्योंकि जब मोसेस जो था, खास तौर से हम बात कर रहे हैं मोसेस के बारे में ही हम इंडिकेट करते हुए बात कर रहे हैं कि उसने पेंटाटुक लिखा है। तो जब उसने कुछ वर्ड्स का यूज किया है, टॉपिक्स का यूज किया है, टाइटल्स का यूज किया है, नेम्स का यूज किया है, पोजीशंस का यूज किया है। ओके, तो वो सब उस समय थे जिस समय ये ऑथर उधर इजिप्ट में था, एंड ये दिखाता है कि ये जो ऑथर है पेंटाटुक का, ये जो राइटर है पेंटाटुक का, वो इजिप्ट में रहा है, क्योंकि उसने वहाँ के नाम, वहाँ के पोजीशंस, वहाँ के जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको यूज किए हैं लिखने के लिए। ओके, सो इट क्लियरली शोज दैट द ऑथर, whoever the author is, he lived a good time in Egypt and understood Egyptian culture and everything। ओके, सो वो चीज हमें दिखाती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जेनेसिस 14:14 में कुछ जगहों के नाम हम लोग यहाँ पर देखें, स्पेशली एक जगह का नाम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उस समय मेंशन किया गया लाइश या लेशम, अलग अलग आप उसमें देखोगे लाइश मेंशन किया गया या लेशम मेंशन किया गया है। सो ये प्लेस डैन है। ओके, अब डैन कब बना? जब ये जब हमारे
जोशुआ के पीरियड में जब हमारे इज़राइल के जो लोग थे वो जाकर के केनान में बस जाते हैं एंड जहाँ पर डेनाइट्स रहने लगते हैं, यानी डैन की जो जाति है वो रहने लगती है, तो उसके बाद से उस जगह का नाम डैन पड़ जाता है। ओके, बट उसके पहले इट वाज़ द नेम वाज़ लाइश और लेशम। सो हम देख सकते हैं उस पहले, यानी जब उन लोग रहने लगे थे, उसके पहले ये नाम मेंशन किए गए हैं। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इसके जो पुराने नाम है वो भी मेंशन किए गए हैं, यानी उसके पहले की बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं और उसके कल्चर के बारे में बताया गया है, पुराने नेम्स भी बताए गए हैं। ओके, देन वी कैन सी जेनेसिस 36 के 31 में, ओके, हम लोग देख सकते हैं लिखा गया है ये, देयर लिखा गया है, इट इम्प्लाइज दैट जो भी स्टेटमेंट वहां पर पाया जा रहा है उसमें इस तरीके से बताया जा रहा है कि उस समय इजराइल में किंग था, उस तरीके से लिखा गया है। सो प्रोबेबली दिस राइटिंग वुड प्रोबेबली बी डेटेड ड्यूरिंग सॉल्स टाइम। ओके, सॉल के टाइम पे शायद या उसके बाद में लिखा गया हो ये पार्ट। ओके, ये पार्ट जो है उस समय लिखा गया हो सकता है। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट प्रॉब्ली कंट्रीब्यूशंस थे। ओके, देन वी कैन सी दैट देयर वाज सम रीटचेस डन। ओके, कुछ रीटचेस किए गए थे, यानी जब मोसेस ने प्रोबेबली ये जगहों के नाम लिखे गए होंगे, चीजों के नाम लिखे गए होंगे, खास तौर से प्लेसेस के जब नाम लिखे गए थे, उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम बदलता गया एंड जब पीढ़ी बदलती गई, चेंज होती गई, जनरेशन चेंज होते गए, सो वी कैन सी दैट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस हैड आल्सो चेंज्ड। जगहों के नाम भी चेंज होते गए। ओके, सो प्रोबेबली बोला जाता है, माना जाता है कि सम ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द स्क्राइब्स, खास तौर से स्क्राइब्स ने वो नेम्स को अपडेट किया था, यानी चेंज किया था, अपडेट किया था। यानी एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे लेशम और लाइश था, ओके, उसको चेंज करके बाद में डैन लिख दिया गया था। Okay, so we can understand that in some places you will read the older names and in some places you will read the newer names. Okay, so उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये सब किया गया है। So archaeologically ये सब proofs मिले हैं, change of the name, change of the places, and then kings के नाम, and then technical terms, titles, positions, cultural चीजें, customs, jewelry और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे कि बर्तनों को देखते हैं, वेपन्स को देखते हैं, टूल्स को देखते हैं, कौन से एज से है, कहाँ है। ओके, उसके बाद आर्किटेक्चर को देखा जाता है, उसके बाद ज्वेलरीज को देखा जाता है कि कैसे ज्वेलरी उन लोग पहनते थे, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख करके प्रूफ्स निकाले जाते हैं। ओके, तो जब ये सब प्रूफ्स निकाले गए थे तो उन लोग टाइम पीरियड बता पाते हैं हमें। सो माना जाता है प्रोबेबली उस टाइम पीरियड की बातें हो रही हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इसी में और देखते हैं मोसेस की क्वालिफिकेशन के बारे में। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑथरशिप ऑफ मोसेस इस समय। सो हम यहाँ पे मोसेस की क्वालिफिकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। सो जब इसके बारे में पढ़ा जाता है कि कौन ऑथर हो सकता है पेंटाटुक का, हु कुड बी या हु कैन बी द ऑथर ऑफ पेंटाटुक, सो द बेस्ट नेम्स और द बेस्ट नेम दैट कम्स टुवर्ड द बेस्ट फिट, अगर हम बोल सकते हैं, जो नाम हमारे सामने आता है वो आता है मोसेस का। रीजन बीइंग, वो इजिप्ट में जब रहा था, यानी फर्स्ट 40 इयर्स जब वो इजिप्ट में रहा था, ही ग्रू अप इन अ पैलेस। हम जानते हैं ये इजिप्शियन पैलेस में बड़ा हुआ था, जहां पर ही वाज एजुकेटेड इन ऑल द विजडम ऑफ द इजिप्शियंस एंड वाज पावरफुल इन हिज स्पीच, जो हमें एक्ट 7 का 22 बताता है। ओके, सो अगर आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, तो ही वाज एजुकेटेड इन ऑल द विजडम ऑफ द इजिप्शियंस। ओके, यानी मिस्री की हर एक चीज के बारे में, मिस्रियों के हर एक चीज के बारे में उनका ज्ञान पूरी तरीके से उसको मिला था। उस समय अगर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इजिप्ट वाज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस, अगर हम समझ सकते, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लेस एंड बहुत वहां पर बुद्धि का एक्सपेंशन हो रहा था, स्टडीज का एक्सपेंशन हो रहा था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड उस समय सबसे ज्यादा अधिक अगर हम ज्ञान हासिल कर सकते थे या बेस्ट प्लेस जो आप ग्रो कर सकते हैं, सो वो इजिप्ट था। उस समय मोस्ट पावरफुल प्लेस उस समय माना जाता था। ओके, सो वी कैन से दैट कि मोसेस वहीं पर पला बढ़ा है, ही वाज इन द कोर्ट्स, वो इजिप्ट के कोर्ट में था, यानी पैलेस में पल रहा था, एंड ही गेन्ड ऑल द विजडम एंड ऑल द नॉलेज एंड ऑल द एजुकेशन फ्रॉम देयर, एंड nonetheless he became very powerful in his speech। मैंने जैसे पहले लीडरशिप की क्लास में बताया था कि वो हकलाने के बारे में बात करता है, बट he became powerful in his speech when he was in the palace। okay, so वो बहुत सारी चीजें वहां पर सीख गया था। so बुद्धि मिल गई, तरीका मिल गया, लिखना आने लगा उसको। okay, बाकी के जो यहूदी लोग थे probably they did not know how to write। इब्रानी लोग थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन द ओरल ट्रेडिशंस। जो कहानियां उनको सुनाई जा रही थी, कहानियां सुनाई जा रही थी,
वही कहानियां उन लोग आगे बढ़ाते जा रहे थे। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि मोजेस लिखना पढ़ना जानता था, रीजन बीइंग अच्छे से जानता था, केवल लिटरेट नहीं था, ही वाज एजुकेटेड। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। ओके, सो मोजेस वाज एजुकेटेड, नॉट ओनली लिटरेट। सो ही न्यू हाउ टू राइट, even the way he has written, he knows how to write it, how to express things, how to do the research, कैसे ढूंढना है, कैसे खोजना है, वो सब उसको आता था। ओके, सो बीइंग अ हिब्रू, तो उसको केवल मिस्रियों के बारे में नहीं, बट इब्रानी होने के नाते वो इब्रानी का जीनियोलॉजी एंड ट्रेडिशंस को भी जानता था, समझता था, बिकॉज वो इब्रानी था। एंड उसका हम जानते हैं जब तक उसका वीनिंग का टाइम नहीं होता, एंड वीनिंग का टाइम बहुत लंबा होता था उस समय। सो उसकी मम्मी ने उसको बहुत सारी कहानियां भी सुनाई हैं, वी अंडरस्टैंड दैट। एंड ही वाज अमंग द पीपल, वो लोगों के बीच में भी रहता था। सो ही गेट्स टू नो, ही हैज नोन अ लॉट ऑफ जीनियोलॉजी, अ लॉट ऑफ ओरल ट्रेडिशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, रिकॉर्ड्स उसके पास में था, जो वो इब्रूज के बारे में भी जानता था, इब्रू के गॉड के बारे में जानता था, इब्रू के पूर्वजों के बारे में जानता था। सो ही नोज ऑल दोस थिंग्स थ्रू द ट्रेडिशंस। एंड देन वी सी ही हैड अ इंटीमेट कम्युनियन विद गॉड। ओके, हम जानते हैं कि उसका परमेश्वर के साथ में बहुत ही घनिष्ठ संबंध बन गया था। ओके, सो ही रिसीव्ड लॉज फॉर इजराइल, उसको इजराइल के लिए लॉज भी मिले थे। ओके, तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ही रिसीव्ड रेवलेशंस फ्रॉम गॉड एंड डिटेल्स फ्रॉम गॉड। क्योंकि खास तौर से हम जेनेसिस की अगर बात करते हैं, सो उसके बारे में जानना मुश्किल है, बिकॉज उस समय कोई भी नहीं था। ओके, उस समय कोई भी नहीं था, खास तौर से जब क्रिएशन के बारे में बात करते हो, तो उस समय कोई भी नहीं था। ओके, इवन मैन वाज क्रिएटेड आफ्टर एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। सो वो सारी चीजें रेवलेशन का एक हिस्सा बन जाती हैं। And also all the studies that he has done from all the other cultures. Okay, so he was an eyewitness to many events that happened in the rest of the Pentateuch, and had plenty of time to record that during the 40 years with Israel in the wilderness. Okay, तो हम देख सकते हैं वो एक आई विटनेस की तरह हर चीज उसने देखी थी, एंड उसके पास वो एक्सेस था कि वो वहां से जहाँ रिसोर्सेज से पढ़ सकता था, जान सकता था, ज्ञान हासिल कर सकता था। एंड उसके पास वो टाइम भी था कि वो लिख सके। ओके, सो प्रोबेबली ये सारी चीजें जो 4 पॉइंट्स हमारे सामने थे, वो हमें दिखाते हैं कि मोजेस ही प्रोबेबली इसका ऑथर है। सो these were the 4 evidences of mosaic authorship. ओके, सो मोजेस ने लिखा है पेंटाटुक करके, ये सारे हमारे पास प्रूफ हैं। ओके, अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्री थियरी की ओर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द डॉक्यूमेंट्री थियरी व्हिच इज द एक्सटर्नल एविडेंस। ओके, अभी हमने देखे थे इंटरनल एविडेंसेस, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल एविडेंसेस। ओके, डॉक्यूमेंट्री थियरी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। सो जो डॉक्यूमेंट्री थियरी वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट डेफिनेटली हम लोग उसको ब्रश करते हुए चलेंगे। सो you will get an idea of whatever is happening. Okay, so there is a theory that probably suggests about the certain observable facts. Okay, so हम देख सकते हैं कि उस समय theories पाई जा रही थी, उसमें mainly एक आध theory थी जो बहुत ही important theory थी उस समय की, जो external evidences के बारे में हम बात कर रहे हैं। So जब अगर हम देख सकते हैं रिसर्च करना शुरू किया गया ऑथरशिप के बारे में, जब पेंटाटुक के बुक के बारे में रिसर्च करना शुरू किया गया, सो द रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑथरशिप, क्योंकि ऑथर ही हमें बहुत सारी चीजें बता सकता है। ओके, ऑथर के बारे में जब हमें पता चलता है, सो हमें उसकी राइटिंग स्टाइल के बारे में पता चलता है, हम देखते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है। सो ऑथरशिप बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एवरी रिसर्च ऑफ एनी बुक। ओके, तो हम देख सकते हैं एक थियोरी थी बेसिकली जो जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो इन 1753 जॉन ऑस्ट्रक, ओके, तो इस जीन नहीं पढ़ेंगे, इसको जॉ पढ़ेंगे, जॉ। ओके, तो जॉ एस्ट्रक इसका नाम पढ़ेंगे ऐसे। अ फ्रेंच स्कॉलर ऑब्जर्व 3 फैक्ट्स अबाउट जेनेसिस। ओके, तो उसने क्या किया, ये रिसर्च कर रहा है बंदा, जॉ ऑस्ट्रक रिसर्च कर रहा है। एक ये फ्रेंच स्कॉलर है जो रिसर्च कर रहा है बिब्लिकल बुक्स के बारे में, खासतौर से जेनेसिस के बारे में वो रिसर्च कर रहा था इन 1753, एंड ही ऑब्जर्व 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, उसके ध्यान में 3 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। वो 3 महत्वपूर्ण चीजें क्या है, लेट अस सी। सो ही नोटिस्ड, ओके, उसने क्या नोटिस किया, जब वो जेनेसिस की किताब पढ़ रहा है, उसने 3 चीजें नोटिस की हैं। ओके, सो ही नोटिस्ड दैट सम पैसेजेस यूज द टाइटल एलोहिम फॉर गॉड। Okay, so that the first thing that he observed was that some passages use the title of Elohim for God, and others use Yahweh for Lord.
ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पर वो दो नाम देख रहा है गॉड के, पहला है एलोहिम जो गॉड के लिए लिखा जा रहा है, एंड दूसरा है यहावे, दैट इज फॉर द लॉर्ड। सो एलोहिम मिल रहा है उसको, यहावे मिल रहा है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि कुछ पैसेजेस में एलोहिम है गॉड के लिए और कुछ पैसेजेस में यहावे यूज किया जा रहा है गॉड के लिए, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ओके, देन नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उसका जो था वो ये है दैट देयर आर some डुप्लीकेट बट कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स। ओके, कुछ अकाउंट्स हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं कि ये कौन से अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है। सो देर आर सम डुप्लीकेट बट कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स, ओके, अबाउट द सेम इवेंट्स। तो वो कह रहा है कि एक ही इवेंट के बारे में एक से ज्यादा बार लिखा गया है। Okay, so there are some accounts, there are some events जिसके बारे में एक से ज्यादा बार मेंशन किया गया है एंड डिफरेंट वेज से मेंशन किया गया है। ओके, इसको हम देखेंगे आगे वाले समय में। ओके, देन वी हैव द थर्ड थिंग दैट ही ऑब्जर्व्ड अबाउट द बुक ऑफ जेनेसिस, दैट इज देयर वर डिफरेंट स्टाइल्स और लिटरेरी स्टाइल्स यानी लेखन शैली। तो वो कहता है उस उधर जेनेसिस की किताब में एक प्रकार के नहीं बट थोड़े अलग अलग प्रकार के लेखन शैलियां पाई जाती हैं, लिटरेरी स्टाइल्स आर फाउंड। सो उसने तीन ऑब्जर्वेशंस दिए जो हमें हमारे सामने है। पहला, गॉड के नाम दो है, यानी दो तरीके, दो नामों के द्वारा गॉड के नाम बताए जा रहे हैं, एलोहिम एंड यावे। दूसरा, वो कह रहा है कि एक ही अकाउंट को अलग अलग तरीके से दो एक से ज्यादा बार मेंशन किया गया है। ओके, एंड देन ही इज सेइंग दैट देयर आर डिफरेंट यानी अलग अलग लिटरेरी स्टाइल्स यानी लेखन शैलियां हैं। Okay, so this was the observation of Jean Astruc in 1753. ओके, उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए सो जॉन एस्ट्रक बोलता है कि मोजेस ने शायद क्या किया होगा, मोजेस ने दो मटेरियल्स शायद लिए होंगे। ओके, तो इस जॉन एस्ट्रक के अनुसार प्रोबेबली व्हेन मोजेस वाज राइटिंग डाउन, जब मोजेस लिख रहा था तो उसके पास दो सोर्सेस थे। ओके, दो सोर्सेस थे या दो डॉक्यूमेंट्स थे प्रोबेबली उसके पास, वो प्रोबेबली है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, ये दिस ऑल अजम्पशंस, दिस देयर इज नो एविडेंस फॉर इट। ओके, दिस ऑल अजम्पशन। ओके, सो हम देख सकते हैं कि वो सोच रहा है, ही इज ट्राइंग टू थिंक एंड ही इज ट्राइंग टू बिल्ड द ब्रिज। वो सोच करके ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है, इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे है, क्यों है। ओके, so there is no solid proof or evidence for any of these documents that he's talking about. Okay, so we can understand, वो बोल रहा है मोसेस ने शायद क्या किया है, उसके पास शायद दो डॉक्यूमेंट्स थे। ओके, देयर वर टू डॉक्यूमेंट्स दैट मोसेस सॉ एंड फाउंड, एंड उसने क्या किया, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उसको पिरो करके यानी वीव करके उसने एक बुक बनाई, जेनेसिस। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ओके, सो जॉन एस्ट्रक बोलता है कि probably Moses had two documents with him and he probably took the material from both and wove them together to write Genesis. Okay, that's what he is saying. Okay, then हम लोग देखते हैं ये दो documents थे, वो probably दो different authors द्वारा लिखे गए होंगे. That's what his assumptions are. Okay, then when we move ahead, और ये जॉन ऑस्ट्रक already इसको, इस थियरी को बना चुका है, एस्टैब्लिश कर चुका है और इस फेज में चल रहा है। ही इज, हिज थिंकिंग इज गोइंग ऑन। उसके बाद हम देखते हैं इसको ऐड करते हुए, इसको कंट्रीब्यूट करते हुए इन 1787 एक और एक नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है जिसको हम बोलेंगे जे जी एखॉर्न। ओके, जे जी एखॉर्न। ओके, ये है, ये दूसरा बंदा है जो इसी लाइन में चल रहा है। ओके, सो उसने क्या किया, अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को उसने नाम दे दिया। सो ही सेज कि जिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जॉन एस्ट्रक बात कर रहा था उसको दो नाम दे दिए जाएं। उसने बोला पहला डॉक्यूमेंट जे या ई एंड दूसरा डॉक्यूमेंट ई। ओके, दैट्स व्हाट ही सेड, जे फॉर जेहोवा और यहावे एंड ई फॉर एलोहिम। सो उसने सपोजिटली ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को नाम दे दिए। पहला डॉक्यूमेंट जे जेहोवा के लिए जहां पर यहावे का नाम इस्तेमाल किया गया है, दूसरा डॉक्यूमेंट ई एलोहिम जहां पर एलोहिम के नाम इस्तेमाल किया गया। ओके, तो से ही सपोजिटली नेम्ड दोस डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इसको हम लोग डॉक्यूमेंट थ्योरी के दो हिस्से हैं, जे एंड ई। ओके, देन वी मूव अहेड, हम देखते हैं लेटर ऑन, हम देखते हैं लेटर ऑन ही स्टेटेड दैट इट वाज नॉट मोसेस। ओके, आगे चलकर ये जो एखॉर्न है वो रियलाइज करता है कुछ चीजों को और रिसर्च करता है, एंड उसके बाद वो बोलता है कि शायद दिस वाज नॉट मोसेस हु डिड इट बट एन अननोन ऑथर। ओके, शायद एक अननोन एडिटर था, ऑथर भी नहीं बोलेंगे इसको, एडिटर बोलेंगे। एक अननोन एडिटर था जिसने क्या किया, ही हैड पुट द मटेरियल फ्रॉम दीज सोर्सेस टुगेदर इन जेनेसिस।
Okay, so probably it was not Moses who did that, probably it was another editor. Okay, कोई और एडिटर था जिसने इन दोनों चीजों को लेकर के जेनेसिस किताब में वापस डाल दिया, मिक्स कर दिया. ओके, सो अगेन ऑथरशिप के बारे में क्वेश्चंस उठ रहे हैं बहुत सारे. एंड सो हाउ डिड मोसेस राइट, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. नाउ हाउ डिड मोसेस राइट, वो क्वेश्चन आता जा रहा है बार बार. ओके, सो इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी अब क्या हो रहा है, अब और ज्यादा रिसर्च बढ़ता जा रहा है, रिसर्च बढ़ता जा रहा है, रिसर्च बढ़ता जा रहा है. एंड और सीरियस रिसर्च किया जाने लगा. और जब हम देखते हैं कि एस्ट्रक ने और एखॉर्न ने ये कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर दिए सामने ला करके, तो और भी ज्यादा रिसर्च होने लग गया इसके ऑथरशिप के बारे में. ओके, एंड देन बुक्स के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च होने लग रहा था. सब जानना चाहते थे कि ये बाइबल है तो बाइबल ऐसा क्यों है और वो क्या बता रहा है. उसके एनालिसिस होने लगे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होने लग गए. ओके, सो 18th एंड द 19th सेंचुरीज में हम देखते हैं जो जर्मन यूनिवर्सिटीज थे. ओके, सो जर्मन यूनिवर्सिटीज क्या कर रहे थे वहां पर, अब साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करने लग गए. ओके, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करने लग गए इन्वेस्टिगेशन के लिए. ओके, सो उन लोग बहुत सारे टेक्निक्स यूज करने लग गए, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज करने लग गए, खासतौर से जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज होते हैं प्रूफिंग के लिए और वो सब चीजों के लिए, डेटिंग के लिए, प्रूफिंग के लिए और अलग अलग चीजों को एनालाइज करने के लिए. सो दे स्टार्टेड यूजिंग ऑल दोस टेक्निक्स. ओके, सो अब क्या होने लगा हम देखते हैं, अब इन लोग किस पर्पस से कर रहे हैं, ये रिसर्च किस पर्पस से चल रहा है हम लोग देख लेते हैं. सो व्हाट वाज द पर्पस, उन लोग क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, उन लोग क्या ढूंढना चाह रहे थे, व्हाट वर दे ट्राइंग टू फाइंड और व्हाट वर दे ट्राइंग टू एनालाइज एक्चुअली. ओके, सो वो चीज हम लोग देख लेते हैं. तो देयर आर फोर थिंग्स दैट दे एक्चुअली वांटेड टू एनालाइज और फोर थिंग्स दैट दे वांटेड टू एस्टैब्लिश. ओके, सो जो 18th एंड 19th सेंचुरी में जो एक एकदम से तूफान आ गया था एंड जर्मन यूनिवर्सिटीज थे वो पूरा पूरा बाइबल के पीछे पड़ गए, एक एक बाइबल की बुक के पीछे पड़ गए थे. एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग. उनका पर्पस क्या था. ओके, तो ये फोर पर्पसेस थे जिसकी वजह से उन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. फर्स्टली दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द बाइबल. Okay, they wanted to understand the composition of the Bible. Secondly, secondly था the wording in the original text. यानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे उसके जो शब्द थे, उसके जो वर्ड्स थे, उसके ऊपर खोजबीन करना चाह रहे थे, ओरिजिनल चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे. ओके, देन द ऑथरशिप एंड द डेट ऑफ ईच बुक. देखिए हम जानते हैं कई किताबों के हमें ऑथर ढंग से नहीं पता है, सॉल अजम्पशंस की प्रॉब्ली इसने लिखा है, प्रॉब्ली उसने लिखा है करके कई किताबें ऐसी हैं हमारे पास जिसका ऑथर हमें क्लियरली नहीं पता है. ओके, सो दे वांटेड टू नो द ऑथर, हु वाज द ऑथर, एंड दे वांटेड टू नो द डेट, एग्जैक्ट डेट ऑफ ईच बुक कि ये कब लिखा गया था. अगेन वो डिफिकल्ट चीजें हैं, बट दे वांटेड टू नो ऑल दोस थिंग्स. सो हम जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके हम लोग यूज कर रहे हैं. एंड देन द सोर्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड बाय द ऑथर्स. ओके, तो कहाँ से कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं, व्हाट आर द मटेरियल्स दैट दे आर यूजिंग टू राइट द बुक्स दैट दे आर राइटिंग. ओके, सो ये चार चीजें थी जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे 18th एंड द 19th सेंचुरी में. कहाँ पर, जर्मनी में. ओके, सो ये सारी चीजें लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब उन लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है. उसका रिजल्ट होता है दो टाइप के क्रिटिसिजम्स. Okay, so we see that though two types of criticisms come out as a result of all the researches that were being done. Okay, तो पहला क्या क्रिटिसिज्म है उसको हम बोलते हैं लोअर और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म. Okay, so the first criticism हम देख सकते हैं that is called lower और textual criticism. What is this? Okay, this is about the wordings, or what they did was they were comparing the wordings in the ancient manuscript. So this was fine, there was no problem, because जो available manuscripts थे, जो available ancient manuscripts थे, so they were taking all those things and they were comparing. लोग कंपेयर कर रहे हैं डेट के हिसाब से, ये पुराना वाला है और ये थोड़ा नया वाला है. सो दे आर कंपेयरिंग. सो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, और वो वर्डिंग्स को, एक एक वर्ड को उन लोग लेकर के उसको खोजबीन कर रहे थे. सो दे वांटेड टू गेट अ वेरी एक्यूरेट टेक्स्ट. सो दैट वाज गुड एंड इट हेल्प्ड अ लॉट, ताकि हमें एक सही एक्यूरेट टेक्स्ट मिल सके. सो इसका फायदा हमें ये हुआ कि when they were comparing the different aged manuscripts, एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के जब उन लोग कंपेयर कर रहे थे, उससे फायदा हमें ये निकला कि दे प्रोड्यूस्ड एन अ वेरी एक्यूरेट टेक्स्ट. यानी जो फाइनल आउटकम आया उनका वो बहुत एक्यूरेट टेक्स्ट था, यानी पुराने के बहुत करीब था. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वाज अ गुड थिंग दैट हैपेंड. ये एक अच्छी चीज थी जो हुई. ओके, सेकंड थिंग जो था जिसको हम बोलते हैं हायर क्रिटिसिज्म.
So lower criticism or textual criticism was good. Okay, it helped a lot. It was good, and it brought out a good, accurate text. Okay, क्योंकि वो words को देख रहा था. Okay, second वाला जो था high criticism, ये थोड़ा हानि कर गया. It brought little bit of problem. Okay, because it dealt with authorship, literary history, and or reliability or historical accuracy of the Bible. यानी वो बाइबल के हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में क्वेश्चन करने लगा, रिलायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन करने लगा, उसके लिटरेरी हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन करने लगा, ऑथरशिप के बारे में. So basically it was not contributing, but rather than it was little bit harming the whole thing or the whole stuff. Okay, so consequences क्या हुए? हमने देखा था कि जो लोअर क्रिटिसिज्म था उसका consequences वो गुड. Okay, because एक अच्छा accurate text हमारे हाथ में लगा. ठीक है, अच्छा accurate text we got, or it was produced through the lower criticism. But from the high criticism, consequences क्या थे? The high criticism created unbelief. Okay, it created unbelief. uh, the unbelief of the critics, basically the unbelief of the critics हम देख सकते हैं. उन्होंने क्या करने लगे कि वो काफी चीजों को रिजेक्ट करने लगे. Okay, they started rejecting a lot of things because they were depending on a lot of reasoning. Okay, reasoning पे जब वो लोग डिपेंड करने लग रहे हैं तो क्या हो रहा है? There are many miracles found in the Bible. Okay, बहुत सारे miracles हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं, बहुत सारे supernatural activities हैं जो पाए जाते हैं हमारे बाइबल में. Okay, so when they started questioning all of those things, so हम देखते हैं कि they started disbelieving and rejecting all of it. उन लोग वो सारी चीजों को रिजेक्ट करने लग गए. And the scholars considered all accounts of supernatural to be myths and legends. ओके, सो बाइबल हम जानते हैं कि मिथ नहीं है. ओके, मिथक नहीं पाया जाता उसके अंदर. तो हम ये इतना तो हमें समझ में आता है प्रॉब्ली. तो हम लोग को इतना समझना है कि बिकॉज ऑफ दीज क्रिटिसिजम्स, जब इन लोग उसको पढ़ रहे हैं हाई क्रिटिसिज्म का कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, हम देखते हैं दे कंसिडर्ड ऑल द सुपर नेचुरल अकाउंट्स. कि सुपर नेचुरल मतलब जहाँ पर गॉड के इंटरवेंशंस थे, जहाँ पर अगर आप समझ सकते हो स्वर्ग से मन्ना गिरना, जहाँ पर बटेर गिरना, जहाँ पे लाल समुद्र डिवाइड होना, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं. सूरज रुक गया था, एक दिन रुक गया था, थम गया था. एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द ओल्ड टेस्टामेंट. एंजल्स आकर के पूरे आर्मीज को मार के चले जाते थे. सो ऑल दोस थिंग्स. इवन हम लोग देख सकते हैं दीज इजिप्ट में जो महामारियां आई थी, बहुत वियर्ड टाइप की महामारियां थी, सुपरनैचुरल था वो सब. सो वी कैन सी दैट मेनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग supernaturally, they considered all those events as myths or legends. Okay, so myths and legends matlab you can't believe them. Okay, so that is a simple thing that you cannot believe in myths and legends. Okay, so legends तो फिर भी आप थोड़ा बहुत शायद बिलीव कर जाओ, बट myths को तो आप बिलीव नहीं कर सकते, वो पूरी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं. ओके, सो वी कैन थिंक दैट उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सुपरनैचुरल चीजों को मिथ्स एंड लेजेंड्स करार दे दिया. उसके बाद हम देख सकते हैं द बाइबल्स विटनेस अबाउट इट्स राइटर्स एंड डिवाइन इंस्पिरेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड. यानी अब मोसेस ने जो इंस्पिरेशन के द्वारा लिखा, जो ऑथर्स ने इंस्पिरेशन के द्वारा लिखा, जो रेवलेशंस उनको मिल रहे थे, सो दीज रेवलेशंस दे कैन नॉट प्रूव. उन लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं ऑथर्स कि उनको रेवलेशंस मिल रहे हैं. इट्स अ vision that they are seeing, it's a dream that they are seeing, it's something that God is revealing to them, but they don't have a solid evidence for that. Okay, so हम देख सकते हैं because of those revelations they are writing these things down, and जब वो लिख रहे हैं so उसको accept नहीं किया जा रहा है by the high criticisms. Okay, so उसकी वजह से क्या होता है हम देखते हैं, they followed Estrach and Acorn's high the जो Estrach और Acorn है उन लोग भी क्या करते हैं, sorry high critics जो हैं वो एस्ट्रक और एक हॉर्न के साथ में जुड़ जाते हैं. एंड दे स्टार्ट क्लेमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्लेम करने लग जाते हैं. ओके, उसके बाद हम देखते हैं एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. ओके, 19th सेंचुरी के एंड में एक बंदा आता है जिसका नाम है जूलियस वेलहॉसन. ये और भी बोल सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करके चला जाता है. ओके, सो इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जूलियस वेलहॉसन नाम का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है जो तो वो क्या करता है, वो एक काम करता है उस समय. वो डॉक्यूमेंट्री थियरी जो होती है उसको एक्सेप्ट करता है, वो मानता है डॉक्यूमेंट्री थियरी को, ही एक्सेप्ट्स दैट थियरी. एंड व्हाट ही डज इज, उस समय एक थियरी निकली है जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन थियरी. ओके, एवोल्यूशन थियरी जो डार्विन द्वारा बनाई गई थी. so that theory was very common and popular at that time. so what he did was he already believed in the documentary theory. ठीक है, तो बाइबल की डॉक्यूमेंट्री थियरी पर वो विश्वास करता था. so what he did was he also took the evolution theory.
ओके, एवोल्यूशन थियरी ऑफ मैन एंड एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, उन दोनों को लेता है और मर्ज कर देता है. Okay, so he now merges the documentary theory and the evolution theory together, and he states something. He states the idea of religion had developed from the crude fetish worship. Okay, तो वो क्या कहता है, जो रिलीजन कहाँ से निकल के आता है, रिलीजन निकल के आता है फेटिश आइडिया से, फेटिश वर्शिप से, जानी वो अलग अलग चीजों की जो आराधना करते हैं वहां से रिलीजन निकल करके आया. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. एंड इट गोज थ्रू द वर्शिप जो है वो पॉलीथीज्म से शुरू हुआ है, उसके बाद मोनोथीज्म की तरफ बढ़ा. ओके, सो इट स्टार्टेड विद पॉलीथीज्म, फेटिश वर्शिप शुरू होता है चीजों की आराधना से. देन इट गोज थ्रू पॉलीथीज्म जहाँ बहुत सारे देवता होते हैं, उसके बाद इट मूव्स टू द मोनोथीज्म. ओके, वो एक देवता के बारे में बात करता है. उसके बाद हम देखते हैं वहां पर आ जाता है एंड ही सेज उसके साथ में प्रीस्टली सिस्टम जुड़ जाता है. ओके, सो वो कह रहा है कि इस तरीके से धर्म या रिलीजन हमारे सामने आया था, यानी अलग अलग चीजों की आराधना करते थे, उसके बाद में बहुत सारे देवताओं की आराधना करने लगे एंड ग्रेजुअली इट मूव टुवर्ड्स वन गॉड. ओके, वन गॉड के साथ में प्रीस्टली ड्यूटीज एंड सिस्टम्स जुड़ गए एंड दिस इज हाउ रिलीजन केम इनटू बीइंग. ओके, ये आ गया. उसके साथ में वो कहता है कि बाइबल, अब बाइबल क्या है, जब ये सारी चीजें रिलीजन को दिखा रही हैं, तो अब बाइबल क्या है. बाइबल, ही कहता है, बाइबल देन इट वाज नॉट द रेवलेशन ऑफ गॉड to man. Okay, so he clearly says that Bible is not the revelation of God to man, but it is a simply a record of man's search for God. यानी ये परमेश्वर का रेवलेशन नहीं है मनुष्य के सामने, बट ये एक सर्च है जो मनुष्य करता है परमेश्वर की, खोज है जो परमेश्वर करता, मनुष्य करता है खोज परमेश्वर की. Okay, so वो है बाइबल. That's what he said. So he completely changed. We know that the Bible is a revelation of God to man, but he simply changed everything. And वो अपने रिसर्च के हिसाब से उसने सब कुछ चेंज कर दिया और वो बोलता है कि बाइबल जो है वो मनुष्य की खोज है परमेश्वर के बारे में. सो ही चेंज द होल व्यू ऑफ इट. ओके, अब उसके वजह से हम देखते हैं उसने क्या किया कि उसके आधार पे वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के डेट करने लगा. ओके, तो वो करने लगा कि जितना भी एब्स्ट्रैक्ट थियोलॉजिकली पैसेजेस होते हैं उसको वो लेटर डेट्स देने लगा, बाद के डेट्स देने लगा. और बाकी के तो उसने क्या किया, अलग अलग पैसेजेस को डेट करने लगा अपनी समझ के अनुसार, अपनी थ्योरी के अनुसार. तो ये सब चीजें चले जा रही है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें चली जा रही हैं, बहुत रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स चले जा रहे हैं इस समय. ओके, उसके बाद हम देखते हैं दिस डॉक्यूमेंट्री थ्योरी स्प्रेड फ्रॉम जर्मनी. ओके, तो ये जो थ्योरीज थे जर्मनी में नहीं रहे केवल, बट इट स्प्रेड थ्रू अदर सेमिनरीज ऑल्सो. तो वो अलग अलग सेमिनरीज में स्प्रेड हो गया, वो यूरोप में स्प्रेड हो गया, वो अमेरिका में स्प्रेड हो गया एंड अलग अलग पुलपिट्स से इन सब चीजों के बारे में प्रीच किया जाने लगा. एंड बेसिकली उससे क्या हुआ, इट डिस्ट्रॉयड द फेथ ऑफ द पीपल ऑन द वर्ड. तो परमेश्वर के वचन के ऊपर उसके जो भरोसा था वो सब लोगों का खत्म होने लग गया. सो उनका जो फेथ था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया. सो ही वॉज अ पर्सन, बेसिकली हम बोल सकते हैं जूलियस वेलहॉसन, वो एक बंदा था जिसकी वजह से, जिसकी थियरीज की वजह से सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर फेथ. उन्होंने अपना जो विश्वास था वर्ड के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, वो खो दिया. ओके, सो though this theory, this evolution theory about Israel's religion had been discarded, still many higher critics hold on to the documentary theory. Okay, so हम देखते हैं ये बहुत सारी चीजें चलती गई, उसके बाद भी हम देखते हैं एवोल्यूशन थियरी जो था उसको थोड़ा सा डिसरिगार्ड कर दिया गया, बट स्टिल डॉक्यूमेंट्री थियरी को कई लोग, स्पेशली हायर क्रिटिक्स जो थे वो उसको पकड़ के चलते रहे. ओके, सो वील जस्ट डू दिस पार्ट. हम लोग अभी आज इसको डॉक्यूमेंट्री थियरी का जो हिस्सा है उसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग अगले सेक्शन में अगली कल पढ़ेंगे. ओके, सो ये आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है, इट्स नॉट मच, हम लोग इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट देखने वाले हैं. डॉक्यूमेंट्री थियरी जो थी वो थी जो मेन डॉक्यूमेंट्री थियरी हम लोग जो एक्सटर्नल एविडेंस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री थियरी थी वो 4 डॉक्यूमेंट से बनी हुई है बेसिकली. ओके, दैट इज मेड ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स, दैट इज JED&P. इट हैज 4 पार्ट्स. ओके, जिसके बारे में हम बात करते हैं अभी. जे मैं बता चुकी हूँ, Yahweh, okay, or Jehovah. So J stands for Yahwehistic manuscripts. Okay, Yahwehistic manuscripts or J. So it is called J because Yahweh or J, Jehovah, Lord, that word is found. The name of the God is Jehovah in those manuscripts. So जिन manuscripts में Jehovah नाम पाया जाता है, that were put under Yahwehistic manuscripts. Okay, and supposedly it was written by in the mid of the 19th century.
ओके, प्रॉब्ली ये 9th सेंचुरी के बीच में लिखा गया था, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग द इज़राइलिट मोनार्की एंड द सेंचुरीज आफ्टर मोसेस। सो वी कैन सी दैट ये कौन सा डॉक्यूमेंट है जहां पर यहावे नाम यूज किया गया है। ओके, देन वी हैव द सेकंड डॉक्यूमेंट दैट इज एलोहिस्टिक डॉक्यूमेंट। ओके, दूसरा डॉक्यूमेंट है एलोहिस्टिक डॉक्यूमेंट। सो दिस इज बेसिकली दोज डॉक्यूमेंट और दोज सोर्सेज, द सेकंड सोर्स जहां पर एलोहिम गॉड का नाम यूज किया गया है। ओके, एलोहिम नाम से गॉड को संबोधित किया गया। सो दिस डेट्स अराउंड 8th सेंचुरी। ओके, द थर्ड डॉक्यूमेंट इज ड्यूट्रोनोमी। अब ड्यूट्रोनोमी क्या है? So Deuteronomy is the, हमारा बाइबल वाला Deuteronomy नहीं है ये। Okay, this is not the book of Deuteronomy that is in the Bible. This is a document named as Deuteronomy. Okay, so it is basically, इसके पीछे कहानी है जो मेंशन की जाती है। It is supposedly said that during the time of Josiah, okay, King Josiah जो था, हम जानते हैं इसके टाइम पे रिवाइवल आया था। ओके, सो माना जाता है कि प्रोबेबली कुछ प्रीस्ट्स थे जिन्होंने क्या किया था कि ये डॉक्यूमेंट लिखा था। ओके, रिसेंटली दे रोट द डॉक्यूमेंट एंड दे प्रोबेबली हिड इट इन द टेंपल एंड बिकॉज वो रिवाइवल का टाइम आना था। सो व्हाट दे डिड वाज दे ब्रॉट दिस डॉक्यूमेंट टू द किंग एंड सेड दैट दिस इज अ लॉस्ट बुक ऑफ लॉ दैट वी फाउंड इन द टेंपल व्हाइल क्लीनिंग इट। उन्होंने ऐसा बोला कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने खुद रखा था बेसिकली। उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट है, हमें मिला है, ये लॉस का एक डॉक्यूमेंट है जो खो गया था और अब हमें मिल गया है सफाई करते समय। सो उस डॉक्यूमेंट को रीड किया गया एंड द होल एंड इट वाज इट एक्चुअली ब्रॉट अ रिवाइवल। सो किंग ने रीड किया, लोगों के सामने रीड किया गया एंड पीपल पश्चाताप किया एंड देयर वाज अ ब्रेक आउट ऑफ रिवाइवल एट दैट टाइम। सो इट हैपेंड इन 621 BC। ओके, जोसाया के टाइम पे ये होता है। The fourth document that we have is the priestly source. Okay, priestly source, that is P document. Okay, so this was supposedly written during and after the Babylonian captivity. Okay, so probably ये जो document है ये लिखा गया था बेबीलोन कैप्टिविटी के दौरान और उसके बाद में। सो बेसिकली ये पैसेजेस क्या बताते हैं, जैसे कि आप प्रीस्टली सोर्स पढ़ ही सकते हो। सो उसका मतलब है मंदिर के बारे में। सो टैबरनैकल, सैक्रिफाइसेस, वर्शिप, ऑफरिंग्स और ये सारी चीजों के बारे में वहां पर मौजूद है। ओके, सो बेसिकली हम देख सकते हैं जितना भी मंदिर से रिलेटेड है, ओके, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द टेंपल इज फाउंड इन द प्रीस्टली डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। सो बेसिकली J and E and P आर सपोजिटली इंटरवोवन और वो जेनेसिस की काफी पैरेलल चलता है। but most of the material designated to P is found in Exodus, Leviticus and Numbers. So P का डॉक्यूमेंट का जो मटेरियल है वो खास तौर से जेनेसिस में नहीं मिलेगा, बट बेसिकली वो हमें एक्सोडस, लेविटिकस एंड नंबर्स में ज्यादा मिलता है। So these are the 4 documents or theories that are found that we can talk about in the documentary theory or the external evidences. Okay, so हम लोग okay, थोड़ा सा इसमें और है। If we can take 10 more minutes, then we can finish this portion. ये एक set है पूरा actually. Can we take 10 more minutes? मैम हाँ, मैम विनोद सर ने कुछ वर्क दिया था, अभी 10 बजे के पहले सबमिट करना है। नहीं, I just want 10 minutes. मैं सिर्फ 10 minutes में इसको finish कर देंगे। ओके मैम, Okay, ओके मैम। okay. So हम लोग continue कर लेते हैं, इसको finish कर देते हैं actually. ये थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, इसको फिनिश कर देते हैं। उसके बाद कल जो हम लोग चलेंगे वो नेक्स्ट हाफ पे चलेंगे, जो हमारा वो डे थियरीज हो जाएंगे, उसके ऊपर हम लोग आ जाएंगे, जो सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का। ओके, सो क्रिटिसिजम्स देख लेते हैं। जो हम लोग ने अभी डॉक्यूमेंट्री थियरी देखी थी उससे क्रिटिसिजम्स कुछ पाए जाते हैं। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो कंजर्वेटिव स्कॉलर्स थे हमारे, उन्होंने ये सपोजिशंस जो थे एंड कंक्लूजन्स थे उनको पूरी तरीके से इनकार कर दिया। ओके, सो दे सेड दैट जो जर्मन स्कॉलर्स थे वो प्रेजुडिस पे काम कर रहे हैं, यानी उनका जो पहले की थिंकिंग है उसको लेकर के जो लोग बैठे हैं उस पर काम कर रहे हैं। सो दे सेड, कंजर्वेटिव स्कॉलर्स जो थे उन्होंने बोला कि ये सब रॉन्ग है, ये सपोजिशंस है एंड उन्होंने सपोजिशंस एंड कंक्लूजन्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया और बोला कि जर्मन जो है वो प्रेजुडिस पे काम कर रहे हैं। ओके, इवेंजेलिकल स्कॉलर्स थे वो बोलते हैं कि there is they find no doubt,
ओके, they find no basis for doubting Moses' authorship of the book. ओके, तो उन लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डाउट की बात ही नहीं है कि मोसेस ने इन किताबों को लिखा है. सो वो कहते हैं कि they understand, क्योंकि evangelicals हैं, they understand the work of the Holy Spirit. So they said Holy Spirit guided him, and he guided him to include a lot of things, a lot of historical records and a lot of other materials into the book of Genesis while writing. Okay, so फिर उन लोग ये भी बोलते हैं कि they find no reason to believe why. ओके, ये बहुत सॉलिड चीज है, अगर हम देख सकते हैं इसको कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों होगा कि ऑलरेडी जब एक किताब लिखी जा चुकी है तो उसके बाद हम देखते हैं उसमें से आगे के समय में जो एक यूनिफाइड डॉक्यूमेंट में से अलग अलग चीजों को निकाल करके अलग किया जाएगा और उसको हाई क्रिटिक्स उसको अगर फिर से रीस्टेट करेंगे. सो दे से कि ऐसा क्यों हो, ऐसा करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डूइंग दिस, दैट ऑलरेडी जब एक बुक कंपाइल हो चुका है अब उसमें से अलग अलग भाग को निकाला जाए एंड उसको क्रिटिसाइज किया जाए. ओके, सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बेसिस फॉर डूइंग दैट. सो दे इग्नोर्ड एंड दे रिजेक्टेड ऑल द हायर क्रिटिसिज्म्स. ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं एक बाइबल स्कॉलर है जिसका नाम, जो बाइबल, कुछ बाइबल स्कॉलर्स हैं जिनका नाम काफी फेमस बाइबल स्कॉलर्स हैं, W.L. बैक्स्टर, विलहेम मॉलर, विलियम हेनरी ग्रीन एंड ऑसवर्ल्ड टी एलिस. ओके, दे उन्होंने काफी एनालिसिस किया इन सब डॉक्यूमेंट्स का एंड दे फाउंड मेनी वीकनेसेस इन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजी ने भी वेल हॉसन के जो थिंकिंग थे और उन सब चीजों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रूफ्स फाउंड इन द आर्कियोलॉजी. जब हम अगर आप पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन आप बहुत सारी चीजें सब पढ़ सकते हो जहाँ पर कई काफी प्रूफ्स हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं. नूजी में कई टैबलेट्स मिले हैं, मारी नूजी एंड मारी करके टैबलेट्स मिले हैं एंड दे प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द जेनेसिस अकाउंट. ओके, जेनेसिस में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है एंड पेट्रियार्कल बैकग्राउंड्स दिए गए हैं उसके बहुत सारे प्रूफ्स हमें मिल जाते हैं कि उस प्रकार के लोग रहते थे, उस नाम के लोग रहते थे, उस लाइफस्टाइल के लोग रहते थे, उस कल्चर के लोग, उस कस्टम के लोग रहते थे करके बहुत सारे प्रूफ्स दिए गए हैं. ओके, सो वो सब बेसिकली प्रूव कर देता है कि वेल हॉसन जो भी बोल रहा है बेसिकली वो काफी हद तक के गलत है, क्योंकि गॉड का इंटरवेंशन था एंड दीस पीपल वर देयर. Okay, so data forced the scholars to acknowledge much earlier year time of Genesis. Okay, so हम देख सकते हैं कि इतना सब जो वेस्टर्न स्कॉलर उसको वो कर रहे थे तो उनका जो डेटिंग था वो काफी रिसेंट निकल के आया था. बट जब डेटा यानी इन्होंने रिसर्च करने की आर्कियोलॉजी में सब कुछ कोशिश किया तो वो डेट और पीछे चला गया, यानी दे आर सेइंग द जेनेसिस बहुत पहले लिखी गई थी. Okay, then we can see that the terminologies of Leviticus, okay, it was compared with the Ugaritic system of rituals of 1400. तो हम देखते हैं वहां पर काफी सिमिलर पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि लेविटिकस में जो वर्शिप का तरीका था या लेविटिकस में जो टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं तो वो काफी सारी चीजें यूगरिटिक टेक्स्ट में भी मिली है 1400 BC में से. सो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज वहां पाई जा रही हैं. देन हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजी कंफर्म्स दैट एक्सोडस एंड ड्यूटोनॉमी 2 वर रिटन इन द सेम पीरियड. वो दोनों एक ही समय पे लिखे गए थे, बहुत सारा आगे नहीं लिखा गया था. ओके, सो उन्होंने, हम देखते हैं कई क्रिटिक्स ने बोला था कि वो सॉल के टाइम पर लिखा गया था करके, बट आर्कियोलॉजी हमें बताती है कि प्रोबेबली एक्सोडस एंड ड्यूटोनॉमी सब दोनों के दोनों सेम टाइम पे लिखे गए थे. ओके, एंड द फॉर्म ऑफ सिनाई कवेनेंट, हम सिनाई कवेनेंट यानी जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी लोगों के साथ में, वो सारी वाचाएं और इस तरीके की ट्रीटीज वो वेरी कॉमन इंटरनेशनली. ओके, तो उस समय हम लोग देखते हैं जब मोसेस रहता था और जब गॉड ने ट्रीटी बनाई थी लोगों के साथ में ड्यूट्रोनॉमी में और एक्सोडस में, हम देखते हैं उस प्रकार की ट्रीटीज या उस प्रकार के कवेनेंट्स या उस प्रकार के अग्रीमेंट्स मिडिल ईस्ट में बहुत कॉमन थे. ओके, 1000 एंड 2000 BC में इट वाज वेरी कॉमन इन दोस डेज. सो उसी के हिसाब से गॉड ने भी उनके साथ में ट्रीटीज बनाए थे एंड कवेनेंट बनाए थे. ओके, सो एक्सकवेशंस हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जब एक्सकवेशंस हो रहे थे मिलिटरी, खास तौर से जब मिडिल ईस्ट में एक्सकवेशंस हो रहे थे तो उन्होंने बिब्लिकल चीजों को कई बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेट प्रूव किया है. ओके, सो जितने भी एक्सकवेशंस होते जा रहे हैं बेसिकली अलग अलग जगह पे, खास तौर से जो बिब्लिकल एरियाज हैं होते जा रहे हैं, वहां पर ये प्रूव होता जा रहा है कि जो भी चीजें बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में या पेंटाटुक में जो चीजें मेंशन की गई हैं वो सब फेक नहीं है, वो सब जस्ट मनगढ़ंत कहानियां या मिथ्स नहीं है, बट देयर इज एन एक्यूरेसी इन दैट, देयर इज
ट्रू मेंशन एंड ट्रू नैरेटिव्स हैं वो करके वो प्रूव किया जा रहा है. So some of the customs, people, places and events at the higher critics refer to as mythological are referred to in historical documents and monuments that have been discovered. So higher critics ने जिस चीज को supernatural और myth और mythology बोल दिया था, वो सब चीजें एक्चुअली आर्कियोलॉजी में प्रूव कर दी गई हैं, डिस्कवर कर दी गई हैं और कहा गया है कि ये सच्ची बातें थी, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है. ओके, सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रही थी, जो डॉक्यूमेंट्री थियरी जो था उसके प्रूफ्स जिसके बारे में बात कर रहे थे. सो वो ये चीजें हैं जिसके बारे में मैं मेंशन कर रही थी, जो अकाउंट्स के डुप्लीकेट अकाउंट्स एंड नेम्स ऑफ गॉड के बारे में बात हो रही थी. ओके, सो हम लोग ने नेम ऑफ गॉड के बारे में देख लिया है. सो देयर वर टू नेम्स बेसिकली जो हम जेनेसिस में पढ़ते हैं, यहावे एंड एलोहिम. Okay, so both the names are there and both the names are used, definitely अच्छी तरीके से यूज किया गया है. एंड हम देख सकते हैं एलोहिम जो नाम है, अगर हम देख सकते हैं एलोहिम, कई जगह पे एक एलोहिम जो नाम है वो डेटी के लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता था. ओके, उस समय डेटीज के लिए एल बहुत कॉमन नाम था. ओके, एलोहिम बहुत कॉमनली यूज किया जाता था डेटी के लिए, विच इज हु इज वेरी फार और दूर है और क्रिएटिव पावर रखता है, विच इज सुपर नेचुरल पावर रखता है, इट इज बियॉन्ड. ओके, का उनके बारे में बहुत पावरफुल गॉड है, उसको हम लोग एलोहिम के रूप में लोग बोलते थे उस समय. यहोवा जो नाम है, यहावे या यहोवा जो नाम है, इट टॉक्स अबाउट अ पर्सनल नेम है गॉड का. ओके, पर्सनल नेम है एंड दिस इज द नेम व्हिच गॉड हिमसेल्फ रिवील्ड अबाउट हिमसेल्फ टू मोसेस. जब मोसेस को गॉड ने वो जलती हुई झाड़ी से मुलाकात हुई थी, that is the time when God told that his name is Yahweh or Yehovah, whatever how it is pronounced. I am who I am is that only. Okay, so वो नाम गॉड ने अपना पर्सनल नाम बताया था. एंड मेनी प्लेसेस वी कैन सी दैट दीज नेम्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड आल्सो यूज्ड टुगेदर. यहावे एलोहिम, एलोहिम यहावे करके भी इस्तेमाल किया गया है कहीं जगह पर, और कहीं जगह पर इंटरचेंजेबली यूज किया गया है. सो बोथ द नेम्स हैव बीन यूज्ड definitely. Okay, so there is no problem, no point in telling that ये अलग डॉक्यूमेंट है, वो अलग डॉक्यूमेंट है. इट इज मोर लॉजिकल, अगर हम बोल सकते हैं कि वो कई बार ट्रांसलेशन के टाइम पे शायद नाम स्विच कर दिए गए हो, बिकॉज यहोवा नाम कोई लेता नहीं था उस समय, अडोनाई डाल दिया जाता था, एलोहिम डाल दिया जाता था. सो देयर वर टाइम्स व्हेन ट्रांसलेशंस किए जा रहे थे, तब उस समय शायद नेम्स चेंज कर दिए गए हो. ओके, सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है. अदर थिंग हम देख सकते हैं कि गॉड इंस्पायर्ड पीपल टू यूज डिफरेंट नेम्स of himself to reveal truth about himself. Okay, उसके बारे में बताने के लिए गॉड ने अलग अलग नाम यूज करने के लिए एनकरेज किया है. ओके, जैसे कि जेनेसिस 1 में हम देख सकते हैं एलोहिम, इट इज अ टाइटल ऑफ अ मैजेस्टिक गॉड एंड अ क्रिएटर गॉड. ओके, एक ऐसा परमेश्वर जो बहुत बड़ा है, विशाल है एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव स्ट्रेंथ रखता है, क्रिएटिव पावर रखता है. बट दूसरी ओर जेनेसिस 2 में हम देखते हैं एक रिलेशनशिप को दिखा रहा है गॉड एंड मैन के बीच में, and that is why we see that covenant name of God Yahweh is used. Okay, covenant name God का use किया गया है, where a covenant revelation is made about God. Okay, second जो हम लोग अकाउंट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं वो है डुप्लीकेट अकाउंट्स. अभी डुप्लीकेट अकाउंट्स क्या है, यहाँ पर जो हायर स्कॉलर्स हैं, वो सब हाई क्रिटिक्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कुछ अकाउंट्स है जैसे कि जेनेसिस 1 एंड 2 दोनों क्रिएशन के बारे में है, तो बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट अकाउंट्स हैं. ओके, कि जेनेसिस 1 को ही फिर से डुप्लीकेट करके जेनेसिस 2 में फिर से बता दिया गया है. ओके, बट वी ऑल नो कि दोनों के दोनों अकाउंट्स डिफरेंट हैं. जेनेसिस 1 जो है एक जनरल अकाउंट है. ओके, जनरल अकाउंट है जहां पर पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में बताया जा रहा है. But Genesis 2 जो है, it talks about how God created mankind and provided for his needs. Okay, so we can see that Genesis 1 जो था वो पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में था, जनरल अकाउंट था. एंड देन Genesis 2 जो है वो मैन की क्रिएशन और उसके नीड्स के बारे में बताया जाता है. सो दिस इज अ हिब्रू पैटर्न जहां पर फर्स्ट समरी दिया जाता है और उसके बाद डिटेल्ड अकाउंट दिया जाता है. तीसरा जो हम लोग देख सकते हैं सीमिंग कॉन्फ्लिक्ट अकाउंट, वो ये पाया जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे भी उन्होंने कुछ पैसेजेस को बताया है और बोलते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स है, यानी एक ही पैसेज को 2 बार रिपीट किया गया है और वो आपस में मेल नहीं खा रहे. So the critic says that these are the same accounts but they are spoken differently और वो मेल नहीं खा रहे हैं. Okay, so एक ही अकाउंट को अलग तरीके से बताया गया बट वो कॉन्फ्लिक्टिंग है. So they say, यहाँ पर उन लोग एग्जाम्पल्स देते हैं नोआ के आर्क के बारे में जहाँ पर एनिमल्स को लेके जाया गया था. तो 6:19 and 7:2
में क्यों रेफरेंस करते हुए बताते हैं। उन लोग बोलते हैं कि 619 में भी एनिमल्स के बारे में बोला है, 72 में भी एनिमल्स के बारे में बोला है। बट अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा 69 जो है एक वो जनरल ऑर्डर है एंड 72 में डिटेल्स दिए गए हैं व्हिच इज अगेन अ हिब्रू स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। सो 69 में जनरल अकाउंट है कि ये एनिमल्स जाएंगे, 72 में एक-एक के पेयर्स और कौन-कौन जाएगा उसका डिटेल्स दिया गया है। ओके, उसके बाद हैगर का जो 2 बार वो भागी थी, उन लोग बोलते हैं ये दोनों सेम अकाउंट्स हैं बट डिफरेंट नरेशंस दिए गए हैं। वी ऑल नो दैट एक बार वो भागी थी जब वो प्रेग्नेंट थी, दूसरी बार भागी थी जब बच्चे को लेकर के भेज दिया गया था उसको। ओके, तो हम देख सकते हैं ये 2 अकाउंट्स डिफरेंट थे। उसके बाद एक और एक अकाउंट है जहाँ पे अब्राहम डिसीव करता है, ये डिसेप्शन अकाउंट है अब्राहम का जहाँ वो सारा को अपनी सिस्टर करके बोलता है। सो हम देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों अकाउंट्स एक ही हों। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं क्रिटिक्स भूल जाते हैं दैट एवरी इंडिविजुअल कैन रिपीट द सिंस पुट इन द सेम सर्कमस्टेंस। अगर हम एक ही परिस्थिति में 2 बार डाल दिए जाएँ, तो हम दोनों बार शायद सेम पाप करेंगे। Okay, so it is a human tendency that man can repeat his sins in the same given atmosphere. Okay, तो वो हो सकता है। So ये दो different accounts हैं जो different तरीके से narrate किए गए हैं। So these all accounts that the critics are talking about are two different accounts, and these are not similar or any account, but these are two different accounts that are being spoken about. Okay, उसके बाद जो last है वो हम देख सकते हैं difference in the literary style। ये बहुत सिंपल चीज़ है। उन लोग बोल रहे हैं कि जेनेसिस में जो ऑथर है शायद डिफरेंट ऑथर्स हैं बिकॉज़ अलग-अलग स्टाइल यूज़ किया गया है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम हमेशा जब हम लिखते हैं, जब हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से भी अगर देखने जाएँगे तो फर्स्ट 11 चैप्टर्स आर वेरी डिफरेंट एंड 12 के बाद से हिस्ट्री चालू हो जाती है। ओके, सो दैट इज़ व्हाई देयर आर 2 डिफरेंट स्टाइल्स फाउंड ओवर देयर। एक पुराने बारे में है और एक पहले के बारे में है एंड दूसरा वाला जो है वो हिस्ट्री के बारे में, पैट्रियार्कल हिस्ट्री के बारे में। ओके, उसके बाद स्टाइल क्यों चेंज होता है? स्टाइल इसलिए चेंज होता है जब आप सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा स्टाइल चेंज होता है। ऑडियंस डिफरेंट होती है तो हमारा स्टाइल चेंज होता है। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं पेंटाटुक में नैरेटिव है, हिस्टोरिकल नैरेटिव है, लॉज हैं, स्पीचेस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रीस्टली ड्यूटीज हैं एंड सेरेमनीज हैं। सो हम देख सकते हैं फॉर एवरीथिंग there has to be a different style of writing. So we can see that all these things tell us that every author writes in a different way to suit the subject. Okay, इसीलिए कभी भी एक स्टाइल फॉलो नहीं हो सकता है, सेम वोकैबुलरी फॉलो नहीं हो सकती है। ओके, सो nonetheless the conclusion is that no external evidence has ever been found to exist which was written by the editors. So कोई भी external evidence का proof नहीं मिला है, कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस का डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जो प्रूव कर दे कि ये डॉक्यूमेंट्स सही थे या ये एविडेंसेस सही हैं। ओके, सो दिस इज आई वांटेड टू ब्रिंग यू ऑल टिल हियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। आई नो आई रश्ड लिटिल बिट बट वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो मैंने कवर करने की कोशिश की है जो पोर्शंस हैं, टाइम भी थोड़ा सा कम है। ओके, सो आई होप थोड़ा बहुत पिक्चर थोड़ा सा समझ में आया होगा जो हम लोग पढ़ रहे थे। आई नो आई वाज लिटिल फास्ट बट थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बहुत एटलीस्ट। ओके, सो हम लोग अभी स्टॉप कर